नहीं मैम हमने कर लिया वैसे वो क्वेश्चन आपने करवा दिया था। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. So today we are going to continue the same topic, same chapter, but little this is the time for recapitulation. थोड़ा सा recapitulate करते हैं. अच्छा, we have done question from page number 12. You want heading? Okay, little recapitulation for this question. Guess P Mazzini. Abhishek, am I right, beta? Ask your doubt again. Ma'am, I want the question. Which what was the question of that? Can you tell me answer? Page number 12 पे ना? Guess P Mazzini वाला? ठीक है. हाँ जी, question is who were revolutionaries? Explain any one's contribution. या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है explain Gatsby Mazzini's contribution for the unification. Or you can say last question मैंने बोला था, last line it is written Metternich. See last line, Metternich described him as the most dangerous enemy of the social order. Explain the statement. These type of questions called HOTS question, higher order thinking skill. Okay, and if this question come, answer will be same. So I told you 3 questions with 1 answer. Okay, answer you know now. We have marked already. We have marked. चलो ठीक है. Anuj, unmute yourself, beta. Ma'am, the last question. Anuj, तू लैपटॉप पे क्लास ले रहा है ना? No, फोन पे. फोन पे है. अच्छा ठीक है ठीक है. सुन मेरी बात फिर. ओपन योर कॉपी. तेरे 2 क्वेश्चन मिस हुए मुझे लगता अनुज. हाँ, लास्ट क्वेश्चन मिस हुआ कि गेस्टी मजीनी वाला तूने नहीं करा. उससे पहले वाला एक क्वेश्चन था कंजर्वेटिव डन. यस. ओके, बस फिर उससे पहले तो हमने कोई लिखा ही नहीं. मेरा ख्याल तेरी कॉपी पे वियना कांग्रेस लिखा था हमने. वियना कांग्रेस शायद बुक पे ही मार्क करा था. लिबरल नेशनलिज्म लिखा था. मैम लेटेस्ट वाला में मैंने लिखा है who were conservative, what was their ideology. अच्छा, वो लिखा हुआ. बस ठीक है, फिर तेरा एक ही क्वेश्चन पेंडिंग है, वो बुक पे मार्क कर लेना. तेरा रिटर्न वर्क कोई पेंडिंग नहीं है अनुज. रिटर्न वर्क तेरा कंप्लीट ही है. चलो, नाउ पेज नंबर 13. वी विल रीड फ्रॉम पेज नंबर 13. ओपन योर बुक, पेज नंबर 13. Krish, unmute yourself. Good morning. Good morning, ma'am. हाँ जी बेटा, start reading. Page number 13, Age of Revolutions. Start बेटा, the Age of Revolutions. Unmute करो ना. मैम कौन सा पैराग्राफ है? Page number 13 from the beginning. As conservative regimes tried to consolidate their powers, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberals. After every full stop, you have to stop. अच्छा, कृष्ण ने एक लाइन पढ़ी, as conservative regime tried to consolidate their power. जिस तरह से कंजर्वेटिव अपनी पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, साथ साथ में लिबरल नेशनलिस्ट भी अपनी पावर को बढ़ा रहे थे. They were busy in doing their activities for the nationalism. Now, कृष्ण ने पढ़ा ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड और साथ में इटालियन, जर्मन स्टेट. ये सारे के सारे एरियाज जो थे यूरोप के, कंसोलिडेट कर रहे थे पावर. बेसिकली आई एम गोइंग टू टीच यू 2 मेजर कंट्रीज, जर्मनी एंड इटली. तो हियर इन दिस लाइन कृष्ण ने पढ़ा कि कंसोलिडेट कर रही थी कंजर्वेटिव पावर अपनी, तो लिबरल नेशनलिज्म भी स्ट्रॉन्ग हो रहा था. बोथ आर डूइंग सेम.
हाँ जी कृष, कंटिन्यू बेटा। These revolutions were led by the liberals, nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of commercial middle classes. चलो अब ये तो आपको भी पता है कि एवरी टाइम जो रेवोल्यूशन है वो पढ़े लिखे लोग लाते हैं, मिडिल क्लास पीपल लाते हैं, बिजनेसमैन, एजुकेटेड एंड टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स वगैरह. So they are doing their work. Now in these two lines राहुल कृष्ण ने पढ़ा है कि कंजर्वेटिव अपना काम कर रहे थे, लिबरल नेशनलिस्ट अपना काम कर रहे थे, and many of the elite मतलब VIP people, educated people, business class people, they were doing their effort for the liberalization. This full paragraph is introduction. कहीं भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है रेवोल्यूशंस वाला तो यू कैन पुट दिस पैराग्राफ एज अ इंट्रोडक्शन. हाँ राहुल बेटा. हम फर्स्ट लाइन फिर से रिपीट कर दो, एक्सप्लेन. मैं फिर से कर देती हूँ, कुछ नहीं कहा, सिर्फ दो बातें कृष्ण ने पढ़ी हैं. वन थिंग दैट कंजर्वेटिव रिजीम अपना काम कर रहे थे, लिबरल नेशनलिस्ट अपना काम कर रहे थे. दूसरी बात इसने पढ़ी है कि ऑटोमन एम्पायर था, जर्मन स्टेट पीपल थे और इटालियन स्टेट पीपल थे, साथ में ऑटोमन एम्पायर था और पोलैंड था. यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म चल रहा था. तीसरी लाइन इसने पढ़ी है कि एलीट थे, एजुकेटेड एलीट, मिडिल क्लास पीपल, टीचर्स, डॉक्टर्स, वो सारे लोग अपना लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग सब तरफ फैला रहे थे पूरे यूरोप में. बस यही तीन लाइन है, नथिंग न्यू. ठीक है, चलो अनुज अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट रीडिंग बेटा. द फर्स्ट अपहीवल, you have to stop after every full stop. The first upheaval took place in France, July 1830. One mark answer please underline. पहला अपहीवल 1830 में हुआ. अच्छा ये अनुज पढ़ना जरा, हेडिंग क्या है इस पेज पे? The age revolutions 1830 to 1848. ये कितने साल हो गए? 18. हाँ ये 18 साल हमने पढ़ने हैं रेवोल्यूशंस के और हार्डशिप के. हाँ जी कंटिन्यू बेटा. The Bourbon kings who had been restored to power during conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. चलो अब वो जो कंजर्वेटिव रिजीम थे, गौरव अनम्यूट योरसेल्फ. गौरव कैमरा ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ. क्रिश, आहान, सृजन, कैमरा ऑन. हाँ जी गुड मॉर्निंग. गौरव कैमरा ऑन करो पहले. बेटा आप मुझे पहले ये बताओ कि पढ़ने का दिल नहीं करता आपका? करते हैं. अच्छा, क्लासेस में क्यों नहीं आते हो बताओ? क्लासेस भी तो अटेंड करनी है ना? यस मैम. हाँ तो आपने कॉपी पे क्वेश्चंस कर लिए? मैंने 10 क्वेश्चन करवा लिए हैं. कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए. गौरव मैं कभी भी आपकी कॉपी की डिमांड कर सकती हूँ फॉर चेकिंग. ठीक है, तो कल शायद आपको छुट्टी हो तो कल का दिन अपनी पूरी कॉपी कंप्लीट कर लेना. ठीक है, हाँ जी, और क्लास पूरी अटेंड करा करो. अब ये रहा सृजन. सृजन आई एम सॉरी बेटा, आई एम गोइंग टू रिमूव यू. एंजॉय योर डे. क्रिश अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, हाँ जी ma'am. क्रिश, अगर तुझे इश्यू है ना नेटवर्क का, वीडियो ऑन नहीं कर सकता तो बेटर टू रिमूव द क्लास, लीव द क्लास. या तो कैमरे में अपने बाल देख लिए या अपने बाल सेट कर लिए और बस. इसलिए मैंने तेरे को बोला रीड करने को कि तेरा ध्यान रहे बुक पे. सृजन जरा सीधा होके बैठ जा, मेरे को ऐसी वैसी फोटो नहीं चाहिए तेरी स्क्रीन के ऊपर. फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन नहीं, आप लोग सीधे नहीं बैठ सकते हो. हाँ जी, अनुज ने पढ़ा द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन जुलाई 1830. upheaval means revolt. The Bourbon dynasty who had restored power during conservative. आपको पता है जब नेपोलियन था तो कंजर्वेटिव, जब नेपोलियन था तो बर्बन डायनेस्टी की पावर खत्म हो गई थी.
जब नेपोलियन चला गया तो बर्बन डायनेस्टी ने फिर से पावर ले ली थी जब वियना कांग्रेस बनी। आपको याद दिलाऊं, पीछे वाले पेज पे आना जरा, 11 पे मिला वियना कांग्रेस, थर्ड लाइन, द बर्बन डायनेस्टी। यहां पर लिखा द बर्बन डायनेस्टी विच हैड डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रूल वाज रिस्टोर्ड पावर। यहां उसको पावर मिल गई। अब आज अनुज ने पढ़ दिया कि यहाँ पर पावर उससे फिर चली गई। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की विद लुई फिलिप एट इट्स हेड, मोनार्की बन गई और इसका हेड कौन था? लुईस फिलिप। एक एक लाइन ध्यान से सुनना, मृदुल में अभी पूछने वाली हूँ मैंने क्या बोला। तो मेरी क्लास में अवेयर होके बैठना, वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू मस्ट हैव टू नो कि यू मस्ट कम टू नो फ्रॉम वेयर एंड विच लाइन वी आर गोइंग टू रीड। हाँ जी शान, कैमरा ऑन। यस अनुज कंटिन्यू बेटा। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of Europe catches cold. The July पढ़ दो बेटा, पढ़ दो। The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. चलो अब पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। आपने ये लाइन पहले कभी सुनी है? When France sneezes, the rest of Europe catches cold. पहले आपने ये कहीं लाइन सुनी है? सुनी है, ठीक है। मैं राहुल को अनम्यूट कर रही हूँ। राहुल अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे बता ये क्या लाइन है, व्हाट इट मींस कि फ्रांस स्नीज करता है, फ्रांस को स्नीज करता है, फ्रांस स्नीज करता है तो यूरोप को कोल्ड हो जाता है। राहुल इसका क्या मतलब है? हम इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो भी मींस डिफरेंट आइडियाज से, जैसे नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के, वो फ्रांस से स्टार्ट हुए थे और उसका इम्पैक्ट मैम सारे यूरोप पे वो पड़ा था फिर। हाँ, तभी कहते हैं फ्रांस अगर छींक भी मारता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है। Means whatever the things, whatever the events, whatever the incidents are happening in France, all Europe affected by it, even India also, you know। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, that all are equal and equality before law। We have taken this thing from France, हमने ये चीज फ्रांस से ली थी। So when France sneezes, the rest of Europe catches cold. Yes, Metternich ने कहा था एक बार। Now last line he has read, अनुज ने पढ़ा, the July Revolution sparked an uprising in the Brussels, which led to Belgium। ये ब्रुसेल्स और बेल्जियम का क्या लिंक है? आज लिख लो, आज मैं बता देती हूँ, अगली बार मैं पूछूंगी तो आप मुझे बताओगे। Brussels is the capital of Belgium. Please note down. Brussels is the capital of Belgium. When you will read chapter Power Sharing Civics, first question, first line will be this: Belgium, Brussels is the capital of Belgium. Breaking away from the United Kingdom of Netherlands. Now do one thing, grade 10F, open your copies and start writing this question. And this is hot question, higher order thinking skill. हाँ कशिश अनम्यूट कर। यस कशिश। मैम इस पैराग्राफ की समरी बता दो एक बार। इस पैराग्राफ में कहा है कि जुलाई में पहली रेवोल्यूशन हुई थी, जुलाई 1830 में फ्रांस में पहली रेवोल्यूशन हुई थी। दूसरी बात इन्होंने कही है कि बॉर्बन डायनेस्टी को, जो कि उस टाइम पर हटा दिया गया था, अब उनको वहां पर मोनार्की आ गई थी और लुईस फिलिप उसके हेड बन गए थे। तीसरी बात ये कही है कि मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस में जो भी कुछ होता है उससे पूरा का पूरा यूरोप अफेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद जुलाई रेवोल्यूशन की बात कही है कि ब्रुसेल्स और बेल्जियम की यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड। नाउ इतना ही पढ़ेंगे बस। देखो 10 मिनट मैंने पढ़ाया, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट मैंने पढ़ाया। नाउ द सेम थिंग व्हिच वी हैव रेड, we have to write in the copy so that things must be clear to you. हाँ जी आस्था। I want to say that you said that Bourbon dynasty was which was restored has now overthrown by
liberal revolutionaries, but you are also saying that there was monarchy as well. हाँ तो मोनार्की तो थी ना, मोनार्की तो थी, डेमोक्रेसी थोड़ी आ गई थी वहां पर, राजा था वहां पर, लुइस फिलिप राजा बना था। आगे जाके आप पढ़ोगे एक दो दिन बाद कि लुइस फिलिप का बहुत बुरा हाल हुआ, वही जो आपके लुइस 16 का हुआ था, और लुइस फिलिप अपना सिंहासन छोड़कर भाग गया था। मोनार्की ही थी तब, डेमोक्रेसी थोड़ी ना आ गई है अभी, ठीक है, मोनार्की ही मानेंगे इसको। एंड इसका राजा था लुइस फिलिप, वो भी भाग जाएगा आगे जाके, देखना आप, ठीक है। तभी मैं आपको पीछे वाली चीज भी बता देती हूँ, सो दैट द प्रीवियस टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड विद द रीसेंट टॉपिक, ठीक है आस्था। अब देखो ये जो मैंने आपको चीज पढ़ाई कि व्हेन फ्रांस रेजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, अब ये क्वेश्चन बार बार मैं बोलती हूँ, ये लाइन में बार बार बोलती हूँ, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट you will not able to find out direct answer from text book। अब आपने ये जो लाइन देखी है ना, जब आप 2 महीने बाद ये चैप्टर पढ़ोगे ना, आप भूल भी जाओगे कि लाइन है कहाँ पर इतना जरूर याद रहेगा कि मैडम अक्सर ये लाइन बोलते थे और हमें बताते थे कि फ्रांस नीज भी करता है तो यूरोप को कोल्ड हो जाता है। सो नाउ टुडे वी विल राइट दिस क्वेश्चन इन कॉपी। ओपन योर कॉपीज, सृजन कैमरा ऑन, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू। Write down today's date. शान कैमरा ऑन। हाँ जी, 20 अप्रैल मैं भी लिखूंगी बोर्ड पर आपके लिए। Explain the statement. Write down today's date. मेरे साथ वाली डेट भी लिखो, बहुत से बच्चे तो लिखते भी नहीं है। हाँ शबनम, हाँ शबनम, yes Ma'am, we Shebnam. have done this question. Ma'am, we Yeah. have done this question. You done this question? Ma'am, kar liye. नहीं Ma'am, नहीं, yes. we have written in the copy. That yes, ma'am. ओके ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर नहीं लिखेंगे, देन वी विल नॉट। Ma'am, ये वाला ही ना? हाँ हाँ ये शबनम मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन द ठीक है, स्टेटमेंट। ओके ठीक है शबनम मुझे दिखा चुकी कॉपी। चलो फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर लिखेंगे नहीं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी रूजल, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 13, बट प्लीज राइट हियर क्वेश्चन, एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहीं पर लिखो, बुक पे, कॉपी पे नहीं लिखना। एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अनुज कैमरा ऑन, आहान कैमरा ऑन। एक्सप्लेन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये ग्रीस ना छोटा सा कंट्री था, बेचारा शर्मीला सा भोला सा कंट्री था, इस भोले से इनोसेंट कंट्री पर ब्रिटेन की नजर पड़ गई, तो उसके बाद क्या हुआ रूजल हमें बताएगी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। शैल वी स्टार्ट? चलो रूजल पढ़ना शुरू करो बेटा। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. चलो, Greece had been part of Ottoman Empire since the 15th century. 15th The century growth of कितने सालों revolution. तक जो था ना, ग्रीक जो था ना वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और इस इवेंट में ऐसा क्यों हुआ, इंडिपेंडेंस इसको क्यों मिली, क्योंकि लोग जाग चुके थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल थे, एंड दे वर अवेयर अबाउट द नेशनलिज्म। ठीक है, हाँ जी तीसरी बात बता रोजल। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. चलो 1821 में ये लोग जागे क्यों, क्योंकि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अवेयर हो गए थे, अवेक हो गए थे, एंड दे वांट इंडिपेंडेंस। हमने भी तो इन्हीं से सीखा, तब तक तो हम भी सोए हुए थे। ये 1789 1780 की बात हो रही है, 1821 की बात हो रही है,
1821 में, 1880 में हम लोग कहाँ थे? अभी कांग्रेस का सिर्फ फाउंडेशन हुआ था 1885 में, ठीक है, तो ग्रीक तो फिर भी बहुत पहले जाग गया। हाँ जी, कंटिन्यू रुजल। Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many Western Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. ग्रीक का ना, जब भी देखो मेरी बात सुनो, ग्रेड 10, जब भी हम ग्रीक की बात करेंगे ना, सबसे पहले आपके दिमाग में ग्रीक को लेके क्या आएगा? बेचारा बड़ा ही भोला सा इनोसेंट कंट्री था और इसका कल्चर बहुत अच्छा था, बहुत ही शरीफ कंट्री था। आपको पता, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, जो बहुत प्यारे से इनोसेंट से लोग होते हैं ना, उनके साथ जब इनजस्टिस होता है ना, तो फिर हम देख नहीं पाते हैं, है ना, अनविलिंगली भी हम उसकी हेल्प करते हैं। तो ग्रीस के साथ भी ऐसा ही हुआ। छोटा सा देश था, वो इंडिपेंडेंस चाहता था। इंडिपेंडेंस चाहना तो कोई बुरी बात नहीं है ना, हम भी तो चाहते थे इंडिपेंडेंस, तो ग्रीस भी इंडिपेंडेंस चाहता था। तो when this country demand for independence, all other countries, those who got independence earlier, जिनको पहले से आजादी मिल चुकी थी, उन्होंने फिर ग्रीस का साथ दिया, है ना। अब आज हम इंडिपेंडेंट है। India got independence in 1947 and we have tasted that trauma, that panic condition in our minds. तो हम उनका भी दुख समझ सकते हैं। जब हम पर बीतती है ना कुछ, तो हम जल्दी समझते हैं कि यही दुख किसी और को है तो वो कैसा फील कर रहा होगा इसके बारे में, है ना। तो आज इंडिया इंडिपेंडेंट है। whenever any country need our help, India's help for independence, हम उसकी हमेशा हेल्प करते हैं, क्योंकि गुलामी में रहना हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। जितना टेस्ट हमने गुलामी का करा है 300 साल तक, वो हमें ज्यादा पता है। तो कोई और हमारी हेल्प लेना चाहता होगा, हम जरूर उसकी हेल्प करेंगे। और हमने बांग्लादेश की बहुत हेल्प की है, हमने बहुत से कंट्रीज की हेल्प की है, क्योंकि हम समझते हैं गुलामी में रहना वेरी वेरी पेनफुल। तो ग्रीस भी ऐसा ही था, छोटा सा कंट्री था, इंडिपेंडेंट चाहता था, क्योंकि वो अवेयर हो चुके थे। अवेयर क्यों हुए थे? क्योंकि लिबरल नेशनलिस्ट आ चुका था और उनको उनके राइट्स के बारे में पता था। एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, सो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। और ऐसा अच्छा सा कल्चर जिसका हो, उसकी सारी हेल्प करना चाहते हैं, तो सभी ने ग्रीस की हेल्प करी। हाँ रुजल, फिर क्या हुआ? Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. उनको ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहिए थी, उनको मुस्लिम एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो लोग तो कहते होते थे यूरोप के सारे कंट्रीज में से ना सबसे अच्छा कंट्री, सबसे अच्छा कल्चर ग्रीस का है, तो सबने ग्रीस की हेल्प की। अब शबनम देखो क्लास में नहीं है, कैमरा कहीं और ही छोड़कर चली गई है, आके बोलेगी कि मैम ये वाला क्वेश्चन बताना। शबनम वेयर आर यू बेटा? कैमरा कहीं और ही ना छत पे, ये देख मेरा कैमरा ऐसा हो तो चलेगा? सी ऐसे मैं पढ़ाऊं तो चलेगा? कितना इरिटेट हो जाओगे, आपके मैम तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब यही बात सृजन को मुझे दूसरी तरह से समझानी पड़ेगी। हाँ जी, कंटिन्यू रुजल। The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. लॉर्ड बायरन, आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, आपको ज्यादा पता है कि ये बहुत अच्छे पोइट हुए हैं और इन्होंने अपनी पोइम्स में ग्रीक की कल्चर की बात करी थी। हमारे भी तो पोइट ने लिखे हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने अच्छी अच्छी पोइम्स लिखी ना हमारे बारे में, आप पढ़ते भी हो। शबनम कैमरा ठीक करो बेटा, आप पढ़ते हो इनकी पोइम्स रविंद्रनाथ टैगोर की। तो लॉर्ड बायरन ने भी इनकी अच्छी अच्छी पोइम्स लिखी थी, बट चक्कर क्या था कि ये बीमार हो गए और 1824 में इनकी डेथ हो गई। हाँ जी। Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. चलो जी, लेकिन बाद में फिर 1832 में एक ट्रेटी हो गई, उस ट्रेटी का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। यस, नेम इज लिटिल डिफिकल्ट, 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में एक ट्रेटी हुई और इस ट्रेटी के, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ग्रीक वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, और इस तरह ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई। राइट, नाउ शो मी थम्स अप इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
Chalo, thank you very much. Now make points from book on. You will not write this question in copy. Hanji. Greek War of Independence. I hope you have written question. Now answer. Krish, camera on. An event that mobilized nationalist sentiment among the educated elite across the Greek War of Independence. Greek had been the part of Ottoman Empire since 15th century. This will be first point. This will be first point. And heading will be, Gaurav? Yes, Gaurav? Ma'am, Greece can also share border with France. ग्रीस नहीं, ग्रीस की जब हम बात करेंगे तो अभी हम फ्रांस की बात नहीं करेंगे. ग्रीस एक छोटा सा कंट्री था, इसको इंडिपेंडेंस चाहिए थी और बाकियों ने हेल्प करके एक ट्रीटी साइन की और इसको इंडिपेंडेंस मिल गई. ठीक है, सीखा इसने भी फ्रांस से ही, सीखा इसने भी फ्रांस से ही, पूरे यूरोप ने फ्रांस से बहुत कुछ सीखा. हाँ जी, सेकंड पॉइंट हेडिंग मैंने बता दिया, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हाँ राहुल, मैम फर्स्ट पॉइंट रिपीट करना एक बार. बेटा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अप टू 15th century. ओके मैम. And heading will be Greek War of Independence. ओके मैम, थैंक यू. हाँ जी, second point, the growth up to 1821. And heading will be revolutionary nationalism. Revolutionary nationalism. Yes, Shabnam. हाँ बेटा, Ma'am, what will be the introduction? इंट्रोडक्शन छोड़ो इसकी, अपने आप ही लिख देना कुछ भी ग्रीस के बारे में या फ्रांस के बारे में भी लिख सकते हो आप. On the first point, an event से start होगा. हाँ जी बेटा, एन इवेंट से ही होगा. Okay, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट 1821 तक लिख लिया. थर्ड पॉइंट लो, नेशनलिस्ट इन ग्रीस अप टू ग्रीक कल्चर. And heading will be ancient Greek culture. Ancient Greek culture. हाँ गौरव? Ma'am, please repeat the point. Second one. बेटा second one. Yes, ma'am. Okay. हाँ जी, second point, the growth of revolutionary से लेकर 1821 तक. And heading will be revolutionary nationalism. Okay, ma'am. Third, nationalist up to culture. And heading will be Greek culture. Next, poets up to empire. Poets up to empire. And heading will be the cradle of European civilization. The cradle of European civilization. Cradle क्या होता है? Starting, beginning. Last point. The English poet
The English poet Lord Byron up to last nation. And heading will be Treaty of Constantinople. The Treaty of Constantinople. Done 5 points, marked. Okay. So you will not write this question on copy. Directly learn from here. From page number 13. Yes, done beta. Srijan beta, camera on. Acha, you know the syllabus of PT1. Your exam is on, I think, 27. 27 ko paper hai. Okay, and syllabus up to page number 10. Okay, 10 page tak hai. And last point it is given na, conservatives, wo nahi karna. That will not come. हाँ शबनम. मैम लास्ट पॉइंट की हेडिंग क्या है? Treaty of Constantinople. ओके मैम. हाँ जी, any doubt? Any question? हाँ बेटा राहुल. मैम जो की टर्म्स है मैम हमने तो पूरे चैप्टर की है मैम, एग्जाम में सिर्फ पेज नंबर 10 तक वाले ही आएंगे. हाँ जी, पेज नंबर 10 तक वाली हो. ओके मैम. पेज नंबर 10 तक अच्छे से कर लेना. 1 मार्क के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के इसी में से डालने हैं. सो बी वेरी पर्टिकुलर. कोई चीज की प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना. काम रॉन्ग नहीं करना, ठीक है? नहीं समझ आई मुझे अभी भी बोलो, अभी भी मैं समझा दूंगी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो. ऐसे तो सारे इजी हैं, हम लोग काफी स्लो स्पीड से चले हैं, हम लोग फास्ट नहीं चले. कितने दिन हो गए यूरोप चैप्टर शुरू किए, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, है ना? अब आज देखो 1 पेज पढ़ा, वो भी मैंने कॉपी पे कुछ नहीं लिखवाया, तो सिर्फ इसलिए कि आपको चीजें समझ आ जाए. 10 दिन बाद ये नहीं कहोगे कि मैम हमें यूरोप नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया है आपको. हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज रेज हैंड. चलो, thank you very much. Now I am going to wind up the class. You please revise your full chapter. और मिस्टर गौरव अपनी कॉपी कंप्लीट करके मुझे चेक करवाएंगे डे आफ्टर टुमारो. थैंक यू वेरी मच बेटा. गॉड ब्लेस यू.